हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो अगेन आज बात करेंगे एक नई वीडियो में, फिर से 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सेट नंबर 3 क्लास 10th एमसीक्यू सेक्शन ए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3, द क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m plus 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज। हमें m की वैल्यू बतानी है। सो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होगा। दो नंबर का एलसीएम आपको दिया हुआ है। सो द एलसीएम विल बी 10m प्लस 4। और फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। और सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? सेकंड नंबर इज इक्वल टू 42। सो सबसे पहले क्या करें, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 और 42 का एलसीएम कितना आएगा? तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 42 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 3 6, 7 42। ओके, सो नाउ द एलसीएम विल बी, एलसीएम के लिए क्या करें? 2 2 3 7, तो कितना हो गया? 2 2 4, 3 12, 12 7 84। ठीक है। सो नाउ अब हमें पता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें एलसीएम भी दिया हुआ है विच इज 10m प्लस 4, और हमने जो एलसीएम निकाला है वो है 84। तो दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वल रख देते हैं। सो 10m प्लस 4 इज इक्वल टू 84। यहाँ से 10m इज इक्वल टू कितना आ गया? 84 माइनस 4। सो द वैल्यू ऑफ m विल बी, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 10, दैट विल बी 8। So the value of m is equals to 8. So the option number B is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 2 is if alpha beta are the zeros of polynomial is 2x square plus 8x minus 8, then ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अब हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें से सही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 8x minus 8. So in the question it is already given, let's suppose the root of this quadratic polynomial is alpha and beta. So first of all we have to be compare this equation to the standard quadratic polynomial equation which is ax square plus bx plus c, in which you have to be find out the value of a which is 2, the value of b is equals to 8, and the value of c is equals to minus 8. So now first of all we have to be calculated the sum of roots. हमें sum of roots निकालने हैं, that will be minus b upon a होता है, we know very well. So the minus b is what? Minus 8 upon, and the value of a is 2, so 2 4s are 8, minus 4. Now we have to be calculated the product of roots. The product of our roots will be c upon a, and what is the c? C is minus 8, and what is the value of a which is 2, 2 4s are minus 8, that will be minus 4. सो नाउ इन दिस हम देख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो भी क्या आई है? -4, और जो अल्फा बीटा आया है वो भी क्या है? -4. सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हियर इट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, नाउ द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज find the value of k for which the system of equations this and this are inconsistent. So first of all we know very well that inconsistent की क्या कंडीशन होती है? inconsistence के लिए हम क्या करते हैं, जो a1 upon a2 होगा which is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2, ये हमें easily पता है। So now first of all the first equation is given to you x plus 3y, मैं 4 को इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो -4 हो जाएगा। And now we have to be compare this a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1, b1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई? -4. Similarly, the second equation is given to you 3x plus ky plus 12 is equals to 0. So again we have to be compare the equation from a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. So now the value of a2 will be 3, the value of b2 will be k, and the value of c2 will be 12. So now put it down all the values in this condition, that will be a1 upon a2, 1 upon 3 is equals to value of b is 3 upon b2 is k, does not equal to c1 upon c2. c1 is what? -4 upon 12. So 4 1 4, 4 3 12, ये तो ये हो जाएगा। So now here it is 1 upon 3 is just equal to 3 upon k, does not equal to -1 upon 3. So because we have to be find out the value of k in this, so first of all take these conditions together. So now 1 upon 3 is equals to 3 upon k. अब यहाँ से क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
k is equals to 9. So the value of k will be 9. So that's why the option number C is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 4 is, if x is equals to 1 upon square root of 3 is the root of kx square plus root 3 minus root 2 x minus 1 is equals to 0, then k is equal to. अगेन क्वेश्चन ने ये दिया है कि जो x है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 अपॉन रूट 3, वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक रूट है। तो अगर कोई वेरिएबल की जैसे वैल्यूज में दे रखी है x की, वो इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब क्या है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करें, सबसे पहले kx स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन into x minus 1 is equals to 0 दे रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द सिचुएशन विच इज सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसके अंदर, लेट सपोज द रूट विल बी अल्फा प्लस बीटा, मैंने इसके रूट को अल्फा बीटा मान लिया है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन ए, कितना है मेरे पास के, और अल्फा प्लस बीटा में एक रूट लेट सपोज जो उसने एक्स दिया है, तो लेट सपोज मैंने अल्फा को क्या कह दिया 1 अपॉन रूट 3 कह दिया। अब अल्फा की जगह 1 अपॉन रूट 3 रख दो इसके अंदर, सो 1 अपॉन रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन के। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। अब क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा। अब अल्फा बीटा, अगेन वैल्यू अल्फा की हमारे पास है 1 अपॉन रूट 3 और बीटा की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है, एज इट इज रखते हैं। सी कितना है मेरे पास माइनस 1 अपॉन ए, कितना है मेरे पास के। ठीक है, तो यहां से हम बीटा के फॉर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी आ जाएगी माइनस रूट 3 अपॉन के। ठीक है, अब इस बीटा की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन करूंगा। सो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 अपॉन रूट 3, बीटा की वैल्यू मेरे पास आई माइनस रूट 3 अपॉन के इज इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन के। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले रूट 3 के हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया के माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन के। अब ये के से के कैंसिल आउट हो गया, सो ये कितना हो गया के माइनस 3, और इस वाले रूट 3 को मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई में भेज दिया है, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द k minus 3 is equals to minus root 3 into root 3 is minus 3 and minus minus plus root 6 हो जाएगा। तो यहाँ से minus 3 से minus 3 cancel out, so the value of k will be root 6. So now option number A is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 5 is, points A minus 1 comma y and B 5 comma 7 lie on a circle with center O. The value of y are. भाई सबसे पहले इसमें ये बोल दिया है कि जो दो पॉइंट आपको दे रखे हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल में इसका जो सेंटर है उसका लेट सपोज मैंने उसको O कह दिया और उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या दिए हुए हैं 2 माइनस 3y। ठीक है, अब एक पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया क्योंकि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट ए, सो माइनस 1 y। सपोज एक पॉइंट को मैंने कहीं यहाँ ले लिया, पॉइंट बी को, दैट विल बी 5,7। अब क्या पूछ रहा है, वाई के बारे में पूछ रहा है। तो देखो सीधा सीधा क्लियरली यहाँ पे एक चीज विजिबल है, दिस इज व्हाट ओ ए एंड दिस इज व्हाट ओ बी। ये ओ बी है, दोनों की दोनों क्या हो गई, सर्कल की रेडियस हो गई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब हम क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ओ ए में लगाते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। So x1 is minus 1, I am taking minus 2 to the square plus y1 minus y2, that will be y minus minus plus 3y to the square is equals to अंडर रूट ओ बी कैलकुलेट करते हैं। तो ओ में मैं क्या कहता हूँ, उसको x1 y1 कह देते हैं। सो 2 माइनस 5 टू द स्क्वायर एंड प्लस माइनस 3y एंड माइनस 7 टू द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? सो नाउ द नेक्स्ट इज, अब क्या करें भाई, रूट से रूट तो हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचता है, ये हो गया माइनस 3 टू द स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, लेकिन उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, तो 4y का स्क्वायर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, 2 माइनस 5 क्या हो गया, माइनस 3 टू द स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो जाएगा, मैं सबसे पहले कल की तरह, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 7 टू द स्क्वायर। अब माइनस 3 टू द स्क्वायर से माइनस 3 टू द स्क्वायर कैंसिल आउट, सो 4y स्क्वायर कितना हो गया, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगेन माइनस के नंबर की पावर एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑलवेज इज पॉजिटिव, हमेशा प्लस में होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3y प्लस 7 टू द होल स्क्वायर। सो 16y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर विच इज 3y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी।
So 2 into a is what? 3y, and into b is what? 7. So now 16y square is equals to 9y square plus 7 sevens are 49 plus 2 3 जा 6 sevens are 42y. So आप देख सकते हैं 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0. तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो 16 माइनस 9 कितना हो गया? 7y स्क्वायर माइनस 42y minus 49 is equals to 0. Now I am taking 7 as a common, which is y square minus 7 6 are 42, 7 7 are 49 is equals to 0. अब ये 7 उधर 0 में चला जाएगा तो इक्वेशन क्या हो गई? y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 is equals to 0. तो यहाँ से क्या करें? यहाँ से करनी है मिडिल टर्म स्प्लिट. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7. ठीक है, तो माइनस करके क्या लाना है? 6 लाना है. तो 7 माइनस 1 सिंपली वी कैन से. सो y स्क्वायर 7 minus 1 y minus 7 is equal to 0. So it is y square minus 7y minus minus plus y minus 7 is equals to 0. तो ये कितना हो गया? y minus 7 and plus 1 कॉमन लिया यहाँ से तो y minus 7 is equal to 0. तो ये कितना हो गया? y minus 7 और y plus 1 is equal to 0. तो यहाँ से हम निकालते हैं y की वैल्यू. तो y कितना आ जाएगा? So the value of y will be 7 and the value of y will be -1. तो y की मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं, 7 और -1. Okay, so now you can see option number B. So the option B is correct. Okay students, so now move on to the next question. Question number 6 is, if the corresponding medians of two similar triangle are in the ratio 5:7, then the ratio of their corresponding sides. So देखिए, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दे रखी है टू सिमिलर ट्राइंगल्स. सो देखिए बेटा, जो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो थी उसमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स भी रेशो में होंगे और सिमिलरली उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं वो भी रेशो में होंगी. सो अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो चेकआउट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो देखते हैं सॉल्यूशन. बिकॉज द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, सो सिंपली वी कैन से दैट, इसके अंदर एक कंडीशन है जो मैंने पिछली वीडियो में भी नोट कराई थी, आप नोट कर लेंगे दोबारा से अगर किसी बच्चे ने नहीं की है तो. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस रेशो. तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 5:7 है तो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशो भी क्या हो जाएगा? 5:7 ही हो जाएगा. दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी. Okay students, so now move on to the next question. The question number 7 is, if tan squared 45 minus cos squared 30 is equals to x sin 45 cos 45, then the value of x. हमें ये दिया हुआ है तो tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3 होती है, √3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू x. sin 45 कितना होता है? 1/√2 एंड cos 45 कितना होता है? 1/√2. सो बेटा किसी को भी अगर ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में डाउट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बना दूंगा, ठीक है? कमेंट करके बताइए आप लोगों को रिक्वायरमेंट है या नहीं. सो द 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर इज व्हाट? 3/4 इज इक्वल टू x/2. सिंपली टेक द एलसीएम. 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू x/2. 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इज व्हाट? 1/2 इज इक्वल टू x. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2. द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, now move on to the next question. So the question number 8 is, if two tangents incline at an angle of 60 degree are drawn to the circle of radius 4 cm, then the length of each tangent is equal to. क्या पूछ रहा है? टेंजेंट की लेंथ के बारे में पूछ रहा है. तो देखते हैं डायग्राम किस तरीके से बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द सर्कल. मैंने एक सर्कल ले लिया. अब इस सर्कल में जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है मेरे पास? लेट सपोज दिस इज द सेंटर O and this is the radius of the circle which is 4 cm. Now this is again the second radius which is, let's suppose I'm saying this is the A point and this is the B point. तो OB भी क्या हो गया? एक रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर पे. अब यहाँ क्या है? आउटर पे कहीं एक पॉइंट है. लेट सपोज मैंने उसको क्या कह दिया? C पॉइंट कह दिया और C से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी सर्कल के ऊपर CA और CB. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है. अब हम क्या करें? C से लेके O तक मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है. तो हमें ये पता है कि जब बिकॉज AC इक्वल है किसके? BC के, क्योंकि आउटर पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ये थ्योरम भी है. सो ये एंगल कितना हो जाएगा?
ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। आप इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट से प्रूव करके भी निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, जिससे ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब जब ये एंगल 30 डिग्री आ गया तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। दिस इज दिस, ये कुछ इस तरीके से हमने लिया हुआ है, जिसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये सी हो गया, ओ हो गया और ए हो गया। तो ये एंगल मैंने कितना निकाल लिया, 30 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द ए सी। हमें टेंजेंट की लेंथ का पता करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एंगल हमें 30 दिया हुआ है, तो हम सीधा लगा सकते हैं इसके अंदर क्या, tan 30 लगा लेते हैं। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गई इसके अंदर ये वाली, ठीक है, बिकॉज जिस एंगल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है। तो ओ इज द परपेंडिकुलर अपॉन, और बेस क्या हो गया, ए सी, ठीक है। तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3। ओ ए रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 4 ऑलरेडी गिवन है, और ए सी क्या है, टेंजेंट की लेंथ हमें पता ही नहीं है, टेंजेंट है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/√3। कितना आया, 4/√3। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Okay, students, now move on to the next question. So the question number 9 is the volume of two spheres are in the ratio 64:27, the ratio of their surface area. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। लेट सपोज फर्स्ट स्फीयर, उसके वॉल्यूम को मैंने क्या कह दिया, 4/3 पाई r1³ मैंने इसको कह दिया। और जो सेकंड स्फीयर है, सेकंड स्फीयर के वॉल्यूम को मैं क्या कह रहा हूँ, 4/3 पाई r2³ कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशो। तो दोनों का रेशो निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r1³ अपॉन 4/3 पाई r2³ इज इक्वल टू कितना दिया है, 64/27, ठीक है। भाई यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r1/r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27, ठीक है। अब r1/r2 कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और 27 का क्या आ गया, 3। तो यहाँ से r1/r2 पता लग गया। पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया का रेशो। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ का कर देता हूँ स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो मुझे मिला r1² इज इक्वल टू 16/9। okay, and now we have to do the multiplication upon 4 pi, multiplication and division by 4 pi। तो 4 pi से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया, दैट विल बी नोन एज S1, और ये क्या हो गया, अपॉन S2। तो उनके सरफेस एरिया का रेशो कितना आ गया, 16:9। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Okay, students, now move on to the next question. Question number 10 is, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta is equals to 2, then the value of sin cube theta plus cos cube theta। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन कल की वीडियो में भी आया था। तो अगर किसी ने कल की वीडियो भी चेकआउट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। सो भाई tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि भाई tan थीटा और cot थीटा में ऐसा कौन सा एंगल है जिसको ऐड करके 2 मिलेगा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू मैंने 45 ले लिया, तो मुझे पता है कि tan 45, देखते हैं जरा, tan 45 प्लस cot 45 क्या आ गया, 1 + 1, तो आ गया ना 2 के इक्वल। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। वैल्यू किसकी चाहिए, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा की। तो रख देते हैं थीटा को 45, तो दैट विल बी sin 45 का क्यूब एंड प्लस cos 45 का क्यूब। तो sin 45 का क्यूब मतलब 1/√2 का होल क्यूब एंड प्लस अगेन 1/√2 का होल क्यूब। तो कितना आ गया, 1/√2 का होल क्यूब इज व्हाट, 1/2√2 प्लस 1/2√2। 2√2 आ जाएगा एलसीएम, जिससे मिलेगा 1 + 1, दैट विल बी 2/2√2। सो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया, 1/√2। 1/√2 आ गया। लेकिन अब क्या करें भाई, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो √2 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं क्या वैल्यू आ गई, √2/2। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो बेटा मेक श्योर कि एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर क्या आ रहा है, और याद रहे नॉर्मली डिनोमिनेटर में हम लोग स्क्वायर रूट में वैल्यू को नहीं छोड़ते हैं, हमें वहां पे रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 11 इज, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के इफ एएम एंड पीएन आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली एंड AB² रेशो PQ² इज इक्वल टू 4:9 आपको दिया हुआ है।
हमसे पूछा है AM रेशो PN। तो भाई क्या करें, दो ट्राइंगल पहले से ही तुम्हें सिमिलर दे रखे हैं। तो लेट सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये कैसा ट्राइंगल हो गया ABC, और एक ट्राइंगल मैंने बना लिया PQR। ठीक है, तो अब देखो नाम लिखने का भी तरीका है, इसका एक नाम लिखने का तरीका ये है क्योंकि ए स्टार्टिंग में आ रहा है A और यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा है P, तो इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे लिखा। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे A को, तो अगर हाँ यहाँ पे A लिखते तो फिर यहाँ पे P लिखना पड़ता। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं, तो B इक्वल है Q के और यहाँ से C इक्वल है R के। ठीक है ना। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि जो AM है, AM कहाँ आएगा, यानी इस वाले ट्राइंगल में कहीं ना कहीं एक AM आएगा, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा ही करेगा। और PN, ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल की वीडियो में भी है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डिजिट का डिफरेंस है बस। सो ये भी हमारे पास 90 आ गया। अब देखते हैं भाई, AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर दे रखा है, AB और PQ यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो का स्क्वायर दिया हुआ है, AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर क्या दिया हुआ है 4/9। तो क्या करें, यहाँ से पहले AB अपॉन PQ निकाल लेते हैं। तो AB अपॉन PQ कितना हो गया 2/3 आ जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, AM रेशो PN, AM क्या है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड PN इज व्हाट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल PQR। अगेन वही कंडीशन लगेगी जो मैंने अभी पहले भी बताई है आपको कि दो सिमिलर ट्राइंगल में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशो के इक्वल होता है। जो हमारा AM रेशो PN आएगा वो भी कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि 2:3 ही आ जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD। भाई जो AB है वो CD के पैरेलल दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। जो मैंने एक तो ये येलो कलर से हाईलाइट किया है, हमें इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो दिखाते हैं सिमिलर। सबसे पहले इन ट्राइंगल ODC एंड ट्राइंगल OAB। सबसे पहले देखिए ये जो एंगल है ये वाला, दिस एंगल, यानी इसको मैंने एंगल 1 कह दिया लेट सपोज, और ये मैंने कह दिया एंगल नंबर 2। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज AB पैरेलल है CD के, सीधा रीजन लिख सकते हैं ना, AB पैरेलल है CD के, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाउ द नेक्स्ट इज लेट सपोज आई एम सेइंग दिस एंगल इज व्हाट, ये एंगल कितना हो गया एंगल नंबर 3, और ये एंगल कितना हो गया एंगल नंबर 4। तो यहाँ से क्या कह दिया 3 इक्वल है 4 के, अगेन द सेम कंडीशन, AB पैरेलल है CD के और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल जाए तो हम क्या कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OAB। और भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो BPT क्या कहती है, BPT ये कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनकी वो प्रोपोर्शन हो जाती हैं। तो अब ये वाली साइड अपॉन दिस, तो यानी हम क्या कह देंगे OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ठीक है, तो OD अपॉन OB, अब OD क्या है यहाँ पे x-2 है और OB क्या है यहाँ पे x-1 है। सिमिलरली OC क्या दे रखा है x+3, और ये क्या दिया हुआ है OA दिया हुआ है मेरे को x+5। तो करते हैं सॉल्व फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं सबसे पहले। सो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा x-2 मल्टीप्लाई x+5 इज इक्वल टू x-1 एंड x+3। सो देखिए स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 माइनस 2 इज 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x माइनस 3। तो कितना हो गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 7। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 7। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। A square is a circumscribing a circle. The side of the square is 14 सेंटीमीटर। भाई स्क्वायर की साइड दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो ब्लैक कलर का शेडेड पोर्शन है इसका एरिया में बताना है हमें। एक चीज यहाँ क्लियरली विजिबल है कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। अब जो साइड स्क्वायर की है वही मेरे पास सर्कल का डायामीटर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सर्कल है वो उसकी एजेस को टच कर रहा है इसीलिए। तो अब सर्कल का मेरे पास डायामीटर आ गया तो मैं सर्कल की रेडियस यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो अब क्या करें, सबसे पहले जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो हमारा स्क्वायर का एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से हम क्या माइनस करें, एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट विल बी 14 इंटू 14।
माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितनी हो गई 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 इजीली कट जाएगा, 14 इंटू 14 196 माइनस 22 इंटू 7, अब 7 टू 14, 7 टू 14 और 115, 154 और 196 तो करते हैं कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the option number B is correct. Okay students, now move on to the next question. Question number 14 is for the following distribution, marks दिए हुए हैं, number of students दिए हुए हैं, मॉडल क्लास बतानी है। तो मॉडल क्लास के लिए सबसे पहले जो आपको टेबल दी हुई है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, इसको थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेबल बना ली, ये हमारी बन गई टेबल। अब इस टेबल में हम क्या करें, जो मार्क्स हमें दिए हुए हैं उसको हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम इसे इंटरवल की फॉर्म में बनाते हैं। सो बिलो 10 का मतलब क्या है, बिलो 10 का मतलब है 0 से 10, और बिलो 20 का मतलब क्या हो गया 10 से 20, बिलो 30 20 से 30, ठीक है। बिलो 40 30 से 40 हो गया, और बिलो 50 40 से 50 हो जाएगा, एंड बिलो 60 50 से 60 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको दिया हुआ है इसका मतलब ये क्या है आपके पास, बिकॉज इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, ये दे रखी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी, बिकॉज जब भी आपको मोड निकालना होता है तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो भाई फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ जाएगी। अब इसमें से प्रीवियस में से कम करते जाओ, तो 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाके गया 5, 2 में से 1 गया 1 15, 57 में से 27 घटाओ, 7 में से 7 गया 0, और 5 में से 2 जाके 3। अब 75 में से 57 को माइनस करो, 15 में से 7 जाके 8 बचेगा, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 जाके 1। अब 80 में से 75 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी पता कर ली। जैसे ही मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो हमें निकालनी है मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 30, और 30 किस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, 30 से 40 के। तो इसका मतलब जो मॉडल क्लास हो गई वो क्या हो गई 30 to 40। The option number C is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 15 is the diameter of a car wheel is 42 centimeter. Number of complete revolutions हमसे पूछ रहा है। देखो ये जो रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें मैंने कंडीशन आपको बताई थी, जब भी कोई व्हील होता है और जब वो एक चक्कर लगाता है तो वो उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है जितनी वो दूरी चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई आर, उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। एक चक्कर में चली गई दूरी विच इज इक्वल टू 2 पाई आर, और मेरे को नहीं पता कि उसे कितने रिवॉल्यूशन लगाने हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूछ रहा है। तो मैंने लेट सपोज कर लिया जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा इन n रिवॉल्यूशन कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एन, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है विच इज 132 किलोमीटर। तो क्या करें 2 पाई आर इंटू n इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। भाई किलोमीटर को क्या करें, अब देखिए आपको व्हील का जो व्हील दे रखा था उसका जो डायमीटर है सेंटीमीटर में, तो अब क्या करें या तो इसको मीटर में बना लो या किलोमीटर को मीटर में बना लो, मतलब सबको सेम करना है हमें। तो 2 इंटू पाई आर कितनी आ गई यहाँ से 21 आ जाएगी 42/2। सो मैं सेंटीमीटर में लेके चल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ से 132 किलोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 132 इंटू कितना आ जाएगा 10 to the power 5, ठीक है। तो देखते हैं जरा सॉल्व करके। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 21 इंटू एन इज इक्वल टू 132 इंटू 10 to the power 5। सेंटीमीटर में ही लेकर चल रहे हैं, 7 3 21। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 कितना हो गया 66 इंटू एन इज इक्वल टू 132 इंटू 10 to the power 5। 66 इंटू 2 कितना हो गया 132 इंटू एन इज इक्वल टू 132 इंटू 10 to the power 5। 132 से 132 कैंसिल आउट हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 raised to the power 5। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Okay students, now move on to the next question. The question number 16 is for the following distribution, class दे रखी है, frequency आपको दे रखी है, the sum of the lower limit of the median class। सबसे पहले पूछ रहा है median class और उसकी lower limit, और उसी के साथ साथ model class की lower limit, और उन दोनों का क्या निकालना है sum निकालना है। तो पहला टारगेट बन जाता है वी हैव टू बी फाइंड आउट द मीडियन क्लास। तो बेटा जब भी इंटरवल में क्वेश्चन दिया जाएगा और उसकी हमें मीडियन क्लास बतानी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं जरा, ठीक है। या एक काम करो मैं इसी में बना देता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ देखो CF कितनी आ जाएगी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज होगी 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 कितनी हो जाएगी 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 कितना हो गया 66।
ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनने के बाद हमें क्या करना है, मीडियन देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबका सम करेंगे तो कितना आ गया, 66 ही आएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से 66/2 से, तो कितना आ गया 33। अब इस 33 को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कहाँ मिलेगा 37, और 37 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे क्लास मिल रही है वो क्या है 10 से 15। तो मीडियन क्लास कितनी हो गई, मीडियन क्लास वो हो गई हमारी 10 to 15, और इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10, तो लोअर लिमिट हो गई 10, ठीक है। अब निकालते हैं इसके बाद मॉडल क्लास। तो मॉडल के लिए क्या करें, मॉडल के लिए चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है 20 आ रही है, ठीक है। और 20 किस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग है 15 से 20। अब 15 में क्या है मॉडल सॉरी लोअर लिमिट क्या है इसमें 15, तो 15 से 20 क्या हो गई हमारी मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है वो क्या है 15 है, ठीक है। दोनों का सम करना है बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ बोथ द क्लासेस, सो द सम विल बी 10 plus 15 is equals to 25 is the answer. So the option number B is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 17 is two dice are thrown together, the probability that sum of two numbers be the multiple of 4. दो नंबर का सम जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जब दो डाइस को हम थ्रो करते हैं तो वी नो वेरी वेल 36 आउटकम्स बनते हैं। आउटकम्स आ गए हैं जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं 36 आउटकम। तो पूछ क्या रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स बी द मल्टीपल ऑफ 4, दो नंबर का सम जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर आएगा 1,3। सबसे पहला आउटकम क्या आ जाएगा इसमें 1,3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का मल्टीपल है। इसी तरीके से और नंबर देखिए कोई इसके अंदर, आई होप कि और कोई नहीं बचा है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे आउटकम्स आ गए जिनका सम क्या है 4 का मल्टीपल है। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी कितना हो जाएगा, सो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल आउटकम 9/36 which is 9 1 9 9 4 36 which is 1/4. Option number D is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 18 is if 4 tan beta is equals to 3, 4 tan beta में 3 दिया हुआ है, we have to find out the value of 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta. सिंपल देखिए 4 tan beta is equal to 3 दे रखा है, सो tan बीटा की वैल्यू निकाल लो पहले। tan बीटा कितना आ गया 3/4। अब क्या करें, निकालना है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, ये निकालना है। मैंने क्या किया, ऊपर से cos बीटा को कॉमन ले लो। अब आप ये कहोगे कि कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर cos बीटा ऊपर कॉमन तो है नहीं, आप लेंगे कैसे। तो बेटा अगर कॉमन नहीं भी होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं। उसका तरीका क्या होता है, जब किसी डिजिट में कॉमन नहीं आ रहा है तो वो वैल्यू उसके डिवाइड में चली जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट वाली टर्म है 4 sin बीटा, अब इसमें cos बीटा तो है नहीं, तो लेकिन इस केस में क्या होगा, जो मेरा cos बीटा है वो उसके अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। नीचे से भी मैंने क्या किया, cos बीटा को कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा एंड -3 सॉरी +3, ठीक है बेटा। cos बीटा से cos बीटा कैंसिल आउट। अब आपके मन में जवाब आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर ने cos बीटा ही क्यों कॉमन लिया है, बिकॉज हमें जो वैल्यू दे रखी थी वो tan बीटा की दी हुई थी, बिकॉज sin बीटा अपॉन cos बीटा क्या हो जाएगा tan बीटा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने cos बीटा को कॉमन लिया। सो 4 tan बीटा -3 अपॉन 4 tan बीटा +3, तो रखते हैं वैल्यू 4 tan बीटा विच इज 3/4 -3 अपॉन 4 इंटू 3/4 +3, 4 से 4 कैंसिल आउट, ऊपर क्या आ गया 3 - 3/3 3 6 0/6, द आंसर विल बी 0। क्या आंसर आएगा 0। द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन एंड रीजन। तो देखते हैं द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16, दो नंबर का एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 16 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 3072, देन देयर एलसीएम विल बी 162। तो इसको हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ के ये ना समझें कि आपको सही दे रखा है सब कुछ, तो हमें इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वी नो वेरी वेल द फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो भाई एचसीएफ दिया हुआ है 16, तो मैंने एक काम किया कि एलसीएम को मैंने x ले लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा 3072 अपॉन 16।
अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके अगर हमें लगता है कि हमारी वैल्यू जो है 162 के इक्वल आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आएगी जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 192, कितनी हो गई 192 विच इज नॉट इक्वल टू 162। तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, ये तो हो गया फॉल्स। Now move on to the reason. If A, B are two positive integer, then SCF into LCM is equals to A and A into B. Yes, it is correct. ये true होगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसमें क्या होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज असर्शन दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस 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 आर दिस। सबसे पहली बात हो जाती है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर हमने 3 मीडियन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेट सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट मीडियन, दिस इज द सेकंड मीडियन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड मीडियन। तो जो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। आई होप कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन अब वीडियो देखने के बाद उन्हें पता लग जाएगा कि सेंट्रॉइड होता क्या है। तो लेट सपोज अब ये क्या हो गया, लेट सपोज मैंने क्या x1 y1, इसको कह दिया मैंने x2 y2 और इसको कह दिया मैंने x3 y3। अब जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट को मैंने कह दिया xy। तो सेंट्रॉइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट जो x और y को पता करना है तो x इज इक्वल टू होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और जो y होता है y कितना हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है बेटा, तो आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को। इसको लेट सपोज मैंने x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो देखते हैं जरा x कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2, x1 0 है, x2 8 दे रखा है, x3 कितना दे रखा है 8 दे रखा है अपॉन 3, 8 8 कितना हो गया 16 अपॉन 3, और y कितना आ जाएगा, y को चेक कर लेते हैं, y1 कितना हो गया 6, y2 कितना हो गया 12 एंड y3 कितना हो गया 0 अपॉन 3। तो y कितना हो जाएगा 18 अपॉन 3, 3 6 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए 16 अपॉन 3 6, और आ क्या रहा है 17 अपॉन 3 5 विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब असर्शन तो हो गया हमारे पास फॉल्स। और रीजन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस 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 आर दिस। ये तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको लिख के दिखाया, तो ये हमारा हो गया ट्रू। तो इससे क्या पता चलता है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर टुडे वीडियो एंड आई होप कि आज की वीडियो सभी बच्चों को क्लियर होगी। और बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इनकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और बेटा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।